This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sarfraz, and today we are going to learn a beautiful and inspiring lesson from grade 3. Chapter number is 4, and the title of the lesson is Kindness to Children. Basically, this lesson is based on the life of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was not only the last messenger of Allah but also the best role model for all of us. His life was filled with love, mercy, and kindness, especially towards children. Through this lesson, we will learn how he sallallahu alaihi wasallam treated children with affection and what we can learn from this lesson. आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 3 में से लिया गया है. इसका चैप्टर नंबर 4 है और लेसन का टाइटल है काइंडनेस ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, काइंडनेस टू चिल्ड्रन. बेसिकली ये लेसन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के मोहब्बत के बारे में बताता है कि आप बीइंग द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जहाँ ज़िंदगी की बाकी तमाम फील्ड्स में हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो वहीं पे आपका बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत, उनके साथ रहम दिली, ये भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है. तो आज के इस लेसन से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके साथ रहम दिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ जो रवैया था उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द ट्रांसलेशन. हम इस लेसन का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन और उसके साथ हम वर्ड बाय वर्ड जो भी इसका ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन की ट्रांसलेशन. हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the last Rasul of Allah, he is a blessing for mankind. पहले इसका ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. इस सेंटेंस में हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a proper noun, is a helping verb, last is an adjective, while Rasul is a common noun, Allah is proper noun. He is pronoun, is helping verb, blessing is noun and mankind is common noun. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the last Rasul of Allah, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. He is a blessing for mankind, आप इंसानियत के लिए रहमत हैं. His life is a perfect example for everyone. His is possessive pronoun, life
is noun, is helping verb, perfect is an adjective, example is noun and everyone is pronoun. अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. सेंटेंस दोबारा पढ़ता हूं. His life is a perfect example for everyone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है. अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज काइंडनेस टू चिल्ड्रन इज वेल नोन. हिज काइंडनेस टू चिल्ड्रन इज वेल नोन. हिज is possessive pronoun, kindness is abstract noun, children common noun, is a verb and noun is an adjective. His kindness to children is well known. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ रहमदिली बहुत मशहूर है. काइंडनेस, रहमदिली मशहूर. Children also loved him very much. Children also loved him very much. This one is the fourth sentence. Children is noun here. Loved is the second form of love. It's a past tense. Him is pronoun. Very is an adverb. Much is also an adverb. लेकिन अगर हम very much को इकट्ठा भी कहें तो it's an adverbial phrase which tells us to what extent, किस हद तक. तो ये adverbial phrase भी है, लेकिन अगर हम इसको word by word देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास adverb हैं. Children also loved him very much. बच्चे भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved children. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते थे. हजरत मोहम्मद is proper noun. Loved is the second form of love. Children is noun. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved children. आप बच्चों से मोहब्बत करते थे. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us how to treat them well and express our love and joy for them. He taught us how to treat them well and express our love and joy for them. Taught is the second form of verb. Second form, teach की. It's a past verb. Us is pronoun. Treat is a verb. Well is an adverb here. Love is noun. Joy is also a noun. Them is pronoun. इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं और इनसे मोहब्बत और खुशी का इजहार करें. सेंटेंस नंबर 7 इज A companion quoted Hazrat Anas Razillahu Ta'ala anhu as saying, I have never seen anyone act more kindly towards children than Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Companion is a common noun. Quoted is verb.
Hazrat Anas is a proper noun. एक साहबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से ज़्यादा बच्चों पर मेहरबान किसी को नहीं देखा। ये सेंटेंस हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ मोहब्बत के बारे में बताता है कि हजरत अनस फरमा रहे हैं कि मैंने इस पूरी दुनिया में किसी शख्स को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मेहरबान नहीं देखा बच्चों के लिए। Once he sallallahu alaihi wasallam was giving the Friday sermon and saw his grandchildren Hazrat Imam Hassan raziyallahu ta'ala anhu and Hazrat Imam Hussain raziyallahu ta'ala anhu coming towards him. Once adverb giving verb present participle. Friday is a proper noun here. Sermon is a common noun. Once he was giving the Friday sermon, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे and he saw his grandchildren Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपने अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमिंग टूवर्ड्स हिम अपनी तरफ आते हुए देखा। Their shirts were too long and they fell. Their shirts were too long and they fell. Shirts plural noun, were helping verb, long adjective, fell is verb second form. Their shirts were too long and they fell. उनकी कमीजें लंबी थीं और वो गिर गए। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got up. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए and rushed to pick them up. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हुए और उनको उठाने के लिए दौड़े। Their shirts were too long and they fell. He got up and rushed to pick them up. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से उठे और उनको उठाने के लिए दौड़े। Got verb, rushed in this sentence is verb. Pick is also a verb. Them is pronoun. The next sentence is when anyone brought the first fruit of the season. When anyone brought the first fruit of the season, he would give it to the youngest children present there. Anyone is pronoun, brought is verb, fruit is noun, and the season is also noun. So now we will translate it. When anyone brought the first fruit of the season, जब भी कोई नए मौसम का फल लाता, he sallallahu alaihi wasallam would give it to the youngest children present there. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वहां पे मौजूद सबसे छोटे बच्चे को देते थे। जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नए मौसम का कोई फल पेश किया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वो फल वहां पर मौजूद सबसे छोटे बच्चे को देते थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज whenever he sallallahu alaihi wasallam came back from a journey, जब कभी भी आप किसी सफर से वापस आते, he sallallahu alaihi wasallam would let the children ride with him.
जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आते तो बच्चों को अपने साथ सवारी पर बिठाते। He is pronoun came is the second form of come, verb. Back is adverb. From is preposition. A is an article. Journey is a noun. Would modal auxiliary verb. Let is verb base form. The is an article. Children noun. Ride is verb. With is preposition. Him is pronoun. Whenever he came back from a journey, he would let the children ride with him. जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आते तो बच्चों को अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। The next sentence is his love and kindness was not confined to Muslim children only. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मेहरबानी सिर्फ मुसलमान बच्चों तक महदूद ना थी। जिस तरह हमने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम कायनात के लिए रहमत है, तो आपका बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत और ये शफकत जो है ये किसी मजहबी बेस पर नहीं थी, ये सिर्फ मुसलमान बच्चों की हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात के लिए रहमत है। और इसी चीज़ का प्रूफ जो है वो हमें नेक्स्ट सेंटेंस में देखने को मिलता है। व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? उससे पहले हम इसी सेंटेंस का जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लव इज नाउन, kindness is also noun, confined is a verb, children is noun. His love and kindness was not confined to Muslim children only. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों की हद तक महदूद नहीं थी। Even in a battle, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had ordered not to kill women and children. तो इस सेंटेंस में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत नजर आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इवन इन द बैटल, के ताकि जंग में भी, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had ordered not to kill women and children, कि जंग में भी बच्चों और औरतों को कत्ल ना किया जाए, ना मारा जाए। इवन इन द बैटल, हत्ता के जंग में भी ही हैड ऑर्डर्ड नॉट टू किल अ वुमेन एंड चिल्ड्रन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को मारने से मना फरमाया है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave the little mistakes the children made. इसको जरा ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। He is a pronoun, forgave is verb, second form of forgive, mistakes is noun, children is also a noun, made is verb, second form of made. He forgave the little mistakes the children made. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की छोटी गलतियों को माफ फरमा देते थे। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम played with them, gave them rides on his camel and gave them dates. He pronoun played is verb, second form of play, gave is verb, them is pronoun, camel
is noun and dates are also noun. He played with them. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेलते. Gave them rides on his camel. उन्हें अपने साथ ऊंट पर सैर करवाते, अपने साथ ऊंट पर बिठाते. And gave them dates. और उन्हें खजूरें देते. The examples from the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam are a guidance for all of us. Examples: noun, life is also noun, Rasul is proper noun, guidance is noun. The examples from the life of the Rasul are a guidance for all of us. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलने वाली मिसालें हम सब के लिए हिदायत हैं. इस लेसन में हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे और उनके साथ कितनी रहम दिली से पेश आते थे. हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी बच्चों और औरतों को मारने से मना फरमाया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की छोटी गलतियों को माफ फरमा देते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें अपने ऊंट पर सवारी करवाते थे और उन्हें खजूर भी देते थे. जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का कोई नया फल पेश किया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सबसे पहले वहां पर मौजूद सबसे छोटे बच्चे को देते थे. तो ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस कदर शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे. नाउ वी हैव सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन. अब हम उनकी ज़रा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके उर्दू में मीनिंग्स देखते हैं. So first word which we have from this lesson is रसूल. रसूल का उर्दू मतलब भी रसूल ही बनता है, बट अगर हम इसको इलेबोरेट करें थोड़ा सा, रसूल इज स्टैंड फॉर बेसिकली फॉर अ प्रॉफिट और अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह. अल्लाह का पैगंबर जो भी रसूल कहलाते हैं. ब्लेसिंग. What are the meaning of blessing? Blessing is a divine favor or a gift. रहमत. ब्लेसिंग का अगर हम उर्दू में तर्जुमा या ट्रांसलेशन करते हैं या इसका मीनिंग देखते हैं तो वो है रहमत. काइंडनेस. द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेंटल एंड केयरिंग. जेंटल और केयरिंग होना मतलब मेहरबानी. काइंडनेस, मेहरबानी. sermon. What are the meanings of sermon? Sermon is basically a religious speech. Khutbah. Grandchildren. What are the meanings of grandchildren? Grandchildren mean नवासियां और नवासे. Children of one's son or daughter. Confined, restricted. इस तरह हमने सेंटेंस पढ़ा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार और मोहब्बत था ये सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं था, ठीक है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत हैं. तो कन्फाइंड, महदूद, रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एरिया और अ ग्रुप, किसी मखसूस लोगों तक या किसी मखसूस हद तक कुछ होना उसको कन्फाइंड कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड. जर्नी. Journey stands for safar, an act of traveling from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह जाने का अमल जो है उसको traveling कहा जाता है. Next we have forgive. Forgive mean माफ कर देना. Past tense of forgive, to pardon. Now we have some questions from this lesson to understand your to check your understanding. हमारे पास यहाँ पर कुछ इसी लेसन के क्वेश्चंस हैं, हम उनको पढ़ेंगे. आप भी साथ साथ
इन क्वेश्चन को सुनकर जरा रिवाइज कीजिएगा इस लेसन को, और इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हम इन क्वेश्चंस को विद आंसर यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन इज नंबर 1 इज नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमें इनको आंसर करना है। The name of the grandchildren of Rasul were Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain Raziyallahu Ta'ala Anha. Question number 2. To whom would the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam give the first fruit of the season? ये हम अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे वहां पे भी हम पढ़ के आए हैं, उसी में से ये सवाल आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सवाल फिर रिपीट कर देता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। टू होम वुड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन का पहला फल किसको देते थे? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would give the first fruit of the season to the youngest children present there. वहाँ पे जो सबसे छोटा बच्चा मौजूद होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वो फ्रूट देते थे। According to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's command, how were children to be treated in a battle? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded not to kill women and children in a battle. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी बच्चों और औरतों को कत्ल करने से मना फरमाया है। Now we have some assessment questions. These are multiple choice questions. अब हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हैं। आप खुद अपने पास इन क्वेश्चंस को सुनकर इनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा हमारे आंसर करने से पहले ही, ठीक है? तो क्वेश्चंस क्या हैं और साथ साथ उनकी आंसर की भी है, हम आंसर्स भी आपको बताते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन? कौन है जो सबके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है? वी हैव 4 ऑप्शंस। Option A is a king. Option B is Hazrat Anas Raziyallahu Ta'ala Anhu. Option C is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And option D is a teacher. The right answer is option C. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a perfect example for everyone. Question number 2 is, what did the Prophet do when his grandsons fell while walking? We have 4 options. Option A is continued the sermon, ignored them, got up and picked them up, asked someone else to help. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे गिर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 4 ऑप्शन थे कि आपने खुतबा जारी रखा, आपने उनको इग्नोर किया, आप खड़े हुए और उनको उठाने के लिए गए, एंड डी इज आस्क्ड समवन टू हेल्प, आपने किसी और को कहा उनकी मदद करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, got up and picked them up. The next question is, to whom did the Prophet sallallahu alaihi wasallam give the first fruit of the season? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीजन का पहला फ्रूट किसको दिया? The oldest man, his companions, the youngest child, D, his family. The answer is C, to the youngest child. आपने सबसे छोटे बच्चे को वो फल दिया। What did the Prophet do after returning from a journey? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर से वापस आते तो आप क्या करते थे?
gave a speech, आप तकरीर करते थे, played with children, बच्चों के साथ खेलते थे, let children ride with him, अपने साथ बच्चों को सवारी करवाते थे, and the D is slept, आप सो जाते थे. Right answer is C, let children ride with him. The next and the last question, what is the moral of the story? इस story का moral क्या है? We have 4 options. First one is obey your teachers, अपने teachers का एहतराम करें, be brave, बहादुर बने, show kindness to children, बच्चों के साथ शफकत से मोहब्बत से पेश आएं, eat fruits या फल खाएं. तो इसका जो आंसर है वो है C, we should show kindness to children, हमें बच्चों के साथ मोहब्बत से और शफकत से पेश आना चाहिए. Now we have some statement and we have to guess whether this statement is true or false. The first statement is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam disliked children. So this one is a false statement because आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे. He sallallahu alaihi wasallam allowed children to ride with him on his camel. This one is true statement. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सवारी करवाते थे ऊंट के ऊपर. The next one is he sallallahu alaihi wasallam used to scold children for mistakes. This one is false statement. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की जो मिस्टेक्स होती थी आप उनको माफ फरमा देते थे, उनको डांट डपट नहीं करते थे. The Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam ordered not to harm women and children in battle. This one is true statement क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी बच्चों और औरतों को कत्ल करने से मना फरमाया है. He never gave dates to children. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बच्चों को डेट्स खजूरें नहीं दी. This one is false statement क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ही बच्चों को खजूरें देते थे. So honorable teachers and dear students, we must always remember the beautiful teachings of our Holy Prophet as we have completed this lesson. His kindness, especially towards children, is a shining example for all of us to follow. Let's promise to treat all children, our siblings, classmates, and friends with love, respect, and care. May Allah guide us to follow the footsteps of His beloved Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, see you again with a new lesson. Till then, Allah Hafiz.